الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پارہ نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 26 کے اندر یہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسر شہیر صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگوئی سے اس کو دل میں تکلیف پہنچتی ہے، اور در حقیقت انسان کو گوشت سے زیادہ آبرو پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو غیبت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ہر دو کی ملاقات پر کسی تیسرے کی غیبت کی جاتی ہے، گویا غیبت کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ آج کل آپس میں ناراضگی، دل آزاری، خون خرابہ، دشمنی، یہ سب اسی وجہ سے ہے، اور ہم ان برائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اس کا گوشت وہ کھاتا ہے، اپنے بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اس سے بری لگے۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اگر وہ سن لے تو اسے بری لگے۔ تو کسی نے عرض کیا، جو میں کہتا ہوں اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو تو تب وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو میں اپنے بھائی کے بارے میں کہتا ہوں اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو کیا وہ غیبت نہیں ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کچھ کہتے ہو اگر اس میں وہ موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اس کے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں جو تم کہتے ہو اگر اس کے اندر کوئی وہ عیب موجود ہے اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، اسی کے تو غیبت کی جاتی ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور جب تم ایسی بات کہو جو ان میں موجود نہ ہو، یعنی کوئی کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی کے اندر کوئی عیب نہیں، اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو اور ایسی کوئی بات ہے، تو آقا فرماتے یہ بہتان ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود نہیں تو یہ بہتان ہے، اور اگر کسی کے اندر کوئی بات ہے تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تو یہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید و جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، غیبت زنا سے بھی بدترین چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت زنا سے سخت کیوں کر ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔
जब तक वो माफ ना कर दे जिसकी गीबत की है। अगर जिना करने वाला तौबा कर ले सच्चे दिल से तो उसका जो है उसका गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन अगर गीबत करने वाला अगर तौबा भी करता है तो उस वक्त तक उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक उस बंदे की जिसने गीबत की है, जिसकी गीबत की है, जब तक वो माफ ना कर दे तब तक उसकी जो है मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिना जैसे फेले बद से होने वाली बर्बादी से कौन बेखबर है। सब जानते हैं कि जिना की वजह से रिज्क में तंगी, चेहरे का नूर ज़ाइल हो जाता है, दो खानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, जाने की इज्जत मुआशरे में कुछ नहीं होती। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिना से गीबत को जिना से भी बदतरीन फरमाया। आप अंदाजा लगाइए कि गीबत के नुकसानात कितने ज्यादा होंगे और इसकी सजा कितनी सख्त होगी। लिहाजा चंद लम्हों की लज्जत के लिए गीबत करके अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं जिना करने वाला जब जिना करता है और अल्लाह की बारगाह में अगर वह तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। लेकिन अगर गीबत करने वाला तौबा भी कर ले, गीबत करने वाला तौबा भी कर ले, फिर भी वो जन्नत के अंदर सबसे आखिर में दाखिल होगा, सबसे आखिर में दाखिल होगा। तौबा भी कर ले गीबत करने वाला। आज लोग जो बेबाक छोकरे हैं, जो बेबाक अय्याश छोकरे हैं, वो तो जिना के अड्डों पर जाते हैं। लेकिन आप देखें आज चौराहों पर देखें, आज जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं, जो अपने आप को रोजेदार कहते हैं, जो अपने आप को हाजी कहते हैं, लेकिन वो उससे भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वो क्या है? वो गीबत है, वो जिना से भी बदतरीन चीज है। लोग उसको आज अहमियत नहीं देते। लोगों को ख्याल नहीं है कि जिना से भी बदतर कोई गुनाह है तो वो गीबत है। चौराहों पर बैठ जाते हैं, ऑटो पर बैठ जाते हैं, घर के अंदर किसी की गीबत करते हैं, या यहां तक कि आज तो मस्जिद के भी अंदर भी आज लोग गीबत करते हैं। मस्जिद के अंदर भी लोग आज एक दूसरे की गीबत करते। मस्जिद के अंदर अल्लाह के घर में भी आज लोगों की जबान जो है गीबत से महफूज नहीं है। इतना गीबत इतनी आम हो चुकी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत जिना से भी बदतरीन चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं शबे मेराज में ऐसी कौम पर गुजरा जो अपने चेहरे और सीने को छीलते थे, अपने चेहरे को और सीने को छीलते थे। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? तो बुलबुल सिदरा ने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, लोगों के गोश्त खाते हैं और उनकी इज्जत वो आबरू पर हमला करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गीबत की सजा कितनी सख्त तरीन है कि कयामत के दिन अपने ही हाथों से अपने चेहरे और सीने और छीलते होंगे। इसलिए कि जब वो किसी की गीबत किए होंगे तो उस शख्स को रुस्वा और उसके दिल को जख्मी किए होंगे। इसीलिए कयामत के दिन गीबत करने वाले के चेहरे और सीने को सजा दी जाएगी ताकि उसे उस तकलीफ का एहसास हो। ये वो बदतरीन गुनाह है कि कयामत के दिन गीबत करने वाले के चेहरे और सीने को सजा दी जाएगी। वो लोग अपने हाथों से अपने चेहरे को और सीने को छीलते होंगे। किस वजह से? किसी की गीबत की वजह से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत के बाबरकत में हाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर थे। अचानक एक बदबू उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये बदबू क्या है? फिर खुद ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उन लोगों की बदबू है जो मुसलमानों की गीबत करते हैं। एक बदबू उठी। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन लोगों की बदबू है जो लोगों की गीबत करते हैं।
जो मुसलमानों की गिबत करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिबत करने वाले की जबान से निकलने वाले अल्फाज को बदबू फरमाया, इसलिए कि जब दो लोग गिबत करते हैं गोया एक दूसरे से मिलकर उसकी नफरत व कुदरत दिल में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उस शख्स का वकार मजरूह होता है और वह नफरतों का शिकार हो जाता है और मुआशरे में नफरतों का फैलाव होता है, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदबू से ताबीर फरमाया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस बुराई से बचे भी और दूसरों को बचाने की कोशिश भी करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में गीबत कम की जाती थी, इसीलिए उसकी बदबू आती थी, मगर अब गीबत इतनी आम हो चुकी है कि दिमाग में सूंघने की कुव्वत, उसकी बदबू के आदी हम हो गए हैं। गीबत इतनी आम हो गई कि हमें गीबत की बदबू तो आती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती। और उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे मिसाल समझे, इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई शख्स चमड़ा रंगने वाले के घर में दाखिल हो जाए तो उसकी बदबू से वो बंदा एक लम्हा भी नहीं ठहर सकता। चमड़ा रंगने वाले के घर में दाखिल हो जाए अगर कोई बंदा, तो उसकी बदबू से इंसान एक लम्हा भी वहां ना ठहरे। लेकिन जो चमड़ा रंगने वाले हैं, जो लोग वहां काम करते हैं, वो लोग वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सोते हैं और उनको उस बदबू महसूस नहीं होती, उन्हें उस बदबू का एहसास नहीं होता। क्यों? उनके मशाम इस बदबू के वो आदी हो चुके हैं, वो लोग इस बदबू के आदी हो चुके हैं। और यही हाल इस गीबत की बदबू का है कि गीबत की जा रही है, बदबू भी निकल रही है, लेकिन हम लोग बदबू सूंघने के आदी हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज शायद ही कोई ऐसी महफिल गीबत से खाली हो, फिर भी कसरत गीबत की वजह से बदबू का एहसास भी नहीं होता। आज हम लोग अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम से कितने दूर हो चुके हैं कि बुराई को बुराई मानकर उसकी सजा के बारे में जानकर भी हम बचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन काश हमारे दिलों में जरा सा भी खौफे खुदा पैदा हो जाए तो यकीनन हम इस बुराइयों से हमारे दिल में नफरत पैदा हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला जो है हमें इस गुनाह से बचा लेगा, अगर हम बचना चाहे तो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक दिन रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया, मेरी इजाजत के बगैर कोई रोजा इफ्तार न करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का हुक्म दिया और कहा कि मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इफ्तार न करे। यहां तक कि शाम हो गई, लोग आना शुरू हो गए और हर शख्स हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने दिन में रोजा रखा, मुझे इजाजत दीजिए मैं इफ्तार करूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत मरहमत फरमा देते और इसी तरह लोग आते गए, इजाजत लेते गए, लोग आते गए, इजाजत लेते गए, यहां तक कि एक आदमी ने आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर की 2 जवान औरतों ने रोजा रखा है, वो आपकी खिदमत में आते हुए शर्माती है, उन्हें इफ्तार करने की इजाजत दे दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर फेर लिया, उस बंदे से अपना चेहरा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेर लिया। उसने फिर अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से अपना चेहरे अनवर जो फेर लिया, उसने फिर अर्ज किया, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कैसे रोजेदार हो सकता है जिसका दिन लोगों का गोश्त खाते गुजर जाए। वो शख्स कैसे रोजेदार हो सकता है जिसका दिन
पूरा दिन लोगों का गोश्त खाते हुए गुजर जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से कहा, तुम जाओ और उनसे कहो अगर तुम रोजेदार हो तो किसी तरह के करो। उस बंदे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम जाओ और उन औरतों से कहो कि अगर वाकई तुमने रोजा रखा है तो किसी तरह उल्टी करो। चुनांचे उनमें से हर एक औरत ने, जो 2 औरत थे, हर एक औरत ने उल्टी की तो उल्टी के अंदर खून के लोथड़े निकले और उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया और आपने इस बात को सुनकर फरमाया, अगर ये चीज उनके पेट में मौजूद रहती तो उन्हें आग जलाती। एक रिवायत के अल्फाज कुछ इस तरह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मुंह फेर लिया तो वो कुछ देर बाद दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दोनों मर चुकी है या मरने के करीब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। जब वो आ गई तो आपने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला मंगवाया और उनमें से उन 2 खवातीन को, उनमें से हर एक से कहा कि इसके अंदर के करो, इस प्याले के अंदर उल्टी करो। चुनांचे जब एक औरत ने उसने अंदर के की तो उसके अंदर पीप यानी रसी, पीप, खून और बदबूदार मेवात से प्याला भर दिया। जब उल्टी की तो पीप और खून और बदबूदार मवाद से प्याला भर दिया। फिर आपने दूसरी औरत को कहा कि इसमें क्या करो, तो उसने भी इसी तरह पीप, खून और बदबूदार मवाद से प्याला भर दिया। और इन दोनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों ने अल्लाह के हलाल करदा रिज्क से रोजा रखा, यानी इफ्तारी जब सहरी की तो हलाल चीज से की, और फरमाया कि और अल्लाह की हराम करदा अशिया से इन्होंने इफ्तार किया। अल्लाह की हराम चीज से सहरी की, हलाल चीज से जब इफ्तार की, इफ्तार यानी खाना मुंह से कुछ नहीं खाया, हलाल रिस्क से उन्होंने इफ्तार किया, और जो है हराम से उसने इफ्तार किया। इससे मुराद क्या है? उनमें से आका फरमाते, उनमें से एक दूसरे के पास जा बैठी और ये दोनों मिलकर लोगों का गोश्त खाती रही, यानी गीबत करती रही, यानी वो गीबत करती नहीं, सहरी की और लोगों की गीबत में मुब्तला हो गए। लोगों की गीबत दोनों औरतें करने लगी तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता भी दिया, उल्टी करा के उन औरतों को करा के बता भी दिया कि देखो, इन्होंने हलाल चीज से तो सहरी की, लेकिन इफ्तार हराम चीज से की, यानी लोगों के गोश्त खाए, गीबत की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बताओ उससे बेहतर भी कोई तरीका हो सकता है जिससे गीबत की असलियत और उसकी हकीकत को समझाया जाए? गौर करें कि मुंह से भी नहीं खाया और पेट से गोश्त और पीप उल्टी में निकल रहा है। गोया गीबत करने वाले बज़ाहिर लफ्जों से गीबत करते हैं, लेकिन हकीकतन वो अपने भाइयों का गोश्त खाते हैं। और जिसको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने के में निकलवा कर, उल्टी में निकलवा कर बता दिया, उसके बाद भी अगर आज का मुसलमान न समझे और अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता रहे तो कितने अफसोस की बात है। लेकिन हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमें अमल करने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और आइंदा भी हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमें गीबत से बचाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात बता देता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत माइज असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब संसार किया गया, हजरत माइज असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब संसार किया गया
तो दो शख्स आपस में गुफ्तगू करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, इसे देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी पर्दापोशी की थी, इसके जुर्म पर कोई गवाह नहीं था, मगर इसके नफ्स ने न छोड़ा, कुत्ते की तरह संसार किया गया। माज़अल्लाह, वो सहाबी रसूल है जिनको संसार किया गया, हजरत माइज अस्लमी, और किस वजह से किया गया वो बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब उनको संसार किया गया तो दो लोग जो है वो आपस में गीबत करने लगे। हजरत माइज अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु कि इसे देखो कि अल्लाह ने उसके ऐब पर पर्दा डाला था, लेकिन इसके नफ्स ने न छोड़ा और कुत्ते की तरह मारा गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और उन दोनों को बातों को सुनकर आपने सुकुत फरमाया। कुछ देर तक चले, जब आगे चले हुजूर सल्लल्लाहु ताला कुछ देर तक सब चले, रास्ते में मरा हुआ गधा मिला, मरा हुआ रास्ते में गधा मिला और जिसका पांव फैला हुआ था, पांव फैलाए वो मरा हुआ गधा पड़ा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया, जाओ इस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ, जाओ इस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ। उन्होंने अर्ज किया, उन दोनों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे कौन खाएगा, इसे कौन खाएगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमने अपने भाई की गीबत की वो इस मुर्दा गधे के खाने से भी ज्यादा सख्त है। जो तुमने अपने भाई की गीबत की, ये मुर्दा गधा खाने से भी ज्यादा सख्त है जिसकी तुमने गीबत की है। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत माइज अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ये कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये माइज अस्लमी इस वक्त जन्नत की नहरों में गोता लगा रहा है। ये माइज अस्लमी अभी इस वक्त जन्नत की नहरों में गोता लगा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत माइज अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को तौफीक अता फरमाई और उन्होंने दुनिया की सजा को पसंद फरमाया और आखिरत की तकलीफ से बच गए। इस सच्चे ताइब और फिक्र आखिरत में सरशार खुदा के बंदे की जब गीबत की गई तो गीबत करने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्दार गधे का गोश्त खाने का हुक्म दिया और हजरत माइज के बारे में भी बता दिया कि इस सच्चे ताइब और फिक्र आखिरत में सरशार का मकाम क्या है। पता चला अगर अल्लाह किसी को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए तो उस तौबा करने वाले को कभी बुरा न कहा जाए, इसलिए कि सच्चे दिल से तौबा करने वाले पर मौला करम की नजर फरमाता है। सच्चे दिल से जो बंदा तौबा करता है अल्लाह उस पर करम की नजर फरमाता है। और हमें चाहिए, और एक जगह फरमाया गया, जो गुनाह से बचता है सिर्फ आप देखिए आज लोग हैं नमाज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि नमाजी बन जाओ, नमाजी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाहर जाके किसी की गीबत भी करते हैं, चुगली करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन वो गीबत जिना से भी बदतरीन चीज है। आप नमाजी बने, नेक काम करें, लेकिन सबसे पहले काम ये करे कि अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करें। और तकवा क्या है? गुनाह से बचने का नाम तकवा है। और जो गुनाह से बचता है तो फरमाया गया जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करता है, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करता है। इसलिए इस नेकियों पर फोकस न दे, आप गुनाह से बचे, गीबत से बचे, चुगली से बचे, झूठ से बचे और किसी का दिल न तोड़े। आप जिना से भी बचे, हर गुनाह से बचे, आंखों का जिना उससे भी बचे, हाथों से अगर कोई गुनाह हो जाता है उससे भी बचे, हर गुनाह से बचे। अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करें। ये नहीं कि लोगों के सामने आ गए तो हम नेक बन जाएंगे, नमाजी लोग हमें लोग नमाजी कहेंगे और अकेले में बैठकर जिना के मनाजिर देखते हैं आज के नौजवान, इल्ला माशाअल्लाह, रात के 2-2 बजे तक जिना के मनाजिर अपने मोबाइल के अंदर देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियोज आज देखते हैं। याद रखें
गुनाह इंसान को तबाह कर देगा, दुनिया में भी रुस्वा होगा, आखिरत में भी रुस्वा होगा। इसलिए याद रखें, सिर्फ नेकियों पर फोकस, नेकी करें आप, सबसे पहला काम ये करें गुनाह से भी बचें। नमाज, पंचगाना नमाज बाजमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें और दूसरे जो नेक काम है, हलाल रोजी कमाए, घर की जरूरियातें पूरी करें और है माँ बाप का हक अदा करे, उसके बाद जो है पड़ोसियों के हक अदा करे, बीवी के हक अदा करे, बच्चों के हक अदा करे, ये सारी इबादत भी करे और साथ ही साथ अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि नेकियां फरमाया गया, जो जिना करता है उसकी नेकियां नहीं मिटाई जाती। याद रखिए, जिना कर कर जब तौबा करता है बंदा तो उसका तौबा उसकी कबूल की जाती है, लेकिन उसकी नेकियां नहीं मिटाई जाती। और जब गीबत कोई बंदा करता है तो तौबा, गीबत तो करता ही है, गुनाह भी मिलता है, साथ ही साथ उसकी नेकियां भी खत्म हो जाती है, उसकी नेकियां भी मिट जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि गीबत से बदतरीन जो गुनाह है और जिना से जो बदतरीन गुनाह है वो गीबत है, हमें उससे बचना चाहिए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब गीबत से बचने के लिए एक अमल आपको बताता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। एक अमल आपको बता देता हूं ताकि उस पर अमल किया जाए। बहुत आसान अमल है, बहुत आसान अमल है। जब किसी, और इसको बयान किया गया सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। अब देखिए, ये जो फरमान है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है, जब किसी मजलिस में बैठो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुमको गीबत से बचाएगा, और जब उस मजलिस से उठो तब भी कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसकी बरकत क्या मिलेगी? इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला लोगों को तुम्हारी गीबत से बाज रखेगा। कितना आसान अमल है। क्या अमल है? किसी मजलिस में बैठो, दोस्तों की मजलिस है, किसी भी मजलिस में बैठो तो मजलिस में जाते वक्त वहां पढ़ो। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए ना बुलंद आवाज से, इतना तो सबको आता ही है। अब पढ़ना है दुरूद शरीफ, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक मर्तबा पढ़िए तो वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब किसी मजलिस में बैठो तो ये दुआ पढ़ लो। इसका क्या फायदा होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता नाजिल करेगा जो तुमको गिबत से बचाएगा। और जब मजलिस से उठो तो ये फिर से अल्फाज कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसकी बरकत ये होगी, आप मजलिस से उठेंगे तो कोई आपकी गिबत नहीं करेगा, कोई आपकी गिबत नहीं करेगा। और गिबत याद रखे, किसी को लंगड़ा कह देना ये भी गिबत है, किसी को कहना कि ये इसकी आंख में खराबी है ये भी गिबत है, इसका कुर्ता लंबा है टूका है ये भी गिबत है। याद रखे, यानी वो हर बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि हर वो बात अगर सुनने वाला मौजूद हो जिसकी गिबत की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, अगर वो मौजूद हो, अगर वो सुन लेता तो वो बुरा मानता। कोई भी ऐसी बात अगर वो सुन लेता जिसकी तुम बोल रहे हो, जिसके बारे में अगर वो सुन ले तो उससे बुरी लगे, वो गिबत है। आप इतना समझ लीजिए, हमें इस गुनाह से बचना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गिबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को
اللہ تبارک و تعالی غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔